So, hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. In the last video, we discussed about your questions on that in pandemic people are unable to concentrate and life is becoming monotonous, this that. So suggestions were given by me, and today we'll continue from there only. And I suggested that you plan a schedule for yourself and stick to it. We also talked about short term goals, long term goals, instant gratification, if you remember. So, we'll take the thread from there only for today. So, whenever we plan a schedule, children, uh, always keep this thing in mind. We are not, planning only our schedule, we are planning our life. And that has to be done very meticulously. It's not that only big things are important in life. Those small steps which you take every day, they take you every day towards your goal. And when I'm saying goal, that is very important. First of all, the first step is that you need to have a goal in your life. Aim, you can call it, but that has to be written. It's very important to have written goals in life. And surfnet, uh, when you write your goal, your aim, then it becomes easier or it becomes more feasible, so to speak. And as I said a minute back, it's very important to have a goal. Why? Let me tell you. आपने डिसाइड किया कि आप इंजीनियर बनने वाले हैं, आपको एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है. सो दिस विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. We never talk about that good luck and this and that. No, it requires hard work. There's no other way to achieve this. You plan that you have to become an engineer, you have to take admission in good engineering college, then you have to plan for that. You have to make preparation. And this is your long-term goal. If you decide today, you cannot do it tomorrow. Your all classes which you are passing or examinations which you are giving, they are your journey. Let me give you an example. आपको जैसे दिल्ली जाना है, तो आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आपको दिल्ली जाना है. आप पहले ये डिसाइड थोड़ी करेंगे कि हम यहाँ रुक के समोसे खाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे. ये सब नहीं होता है. फर्स्ट यू विल डिसाइड योर गोल. आपको दिल्ली जाना है, बाय रोड जाना है आपने, तो आप पहले दिल्ली कितने टाइम तक पहुँचना है, कितने बजे तक पहुँचना है, पहले ये प्लान कर लेंगे. उसके बाद आप अपने स्टॉपेजेस डिसाइड करेंगे. हाँ, देयर कैन बी स्लाइट चेंजेस. But it's not that okay, I had to reach today and I'll reach tomorrow, there is no issue. No. So let's come back to the point that it's very important to have written goals. अपना एक एम बनाइए, लक्ष्य, गोल, जो भी उसे आप नाम देना चाहते हैं, पहले वो डिसाइड कीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए. जैसे भी हमने कहा कि एक आपका लॉन्ग टर्म गोल बन गया और उसके बाद छोटे छोटे उस कदम लेकर वहाँ तक हमें पहुँचना है. और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो आपका शेड्यूल होता है. वी प्रिपेयर, देन वी एग्जीक्यूट, देन वी इवेल्युएट एंड इन द एंड इफ एनी करेक्शन इज रिक्वायर्ड वी डू इट. हाउ डू वी डू इट? हम आपसे भी बात कर रहे हैं. जब आप प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वो आपका शेड्यूल है. Whatever schedule you have made your own timetable. Nobody, in the last video I have told that make your own timetable as per your needs, or rather your biological clock and according to your surroundings also. You need to take care of your house, you need to take care of your parents also. ऐसा नहीं है कि आप कुछ बना लेंगे कि मैं तो आज से रात भर पढ़ने वाला हूँ, पढ़ने वाली हूँ, और बाकी लोग चाहे जो करें. नो, we all have to take care of our family members also. So whatever schedule you have made, stick to it. Here procrastination will not do. Like you decided that 2 days I'll be doing chemistry from 9 to 12:30, then from 12:30 I'll be doing physics or English. Let me do in between one difficult subject and one light subject. We can do that. So okay, you decided that, you did that. But did you check yourself कि हमने जो भी कुछ पढ़ा है वो एक्चुअली हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अक्सर ये होता है बच्चों कि हम बच्चे बैठे रहते हैं, बुक लेकर उन्होंने पढ़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने पढ़ा क्या उसको इवैल्यूएट नहीं किया. आप अपनी बुक को बंद कीजिए. एक यू कैन टेक एनी टेस्ट पेपर या फिर
आप एक पेपर लेकर उसमें अपने आंसर्स लिख सकते हैं और ओरली भी मन में रिवाइज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या हमें आता है, रिवाइज कीजिए। ऐसे नहीं होगा कि आपने बस बंद करके रख दिया कि अब बहुत हो गया, ये वाला स्लॉट ख़त्म हो गया। जिस भी चीज़ पर हम काम कर रहे थे उस काम को हम आज कर पाए या नहीं कर पाए, इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है कि ऑनलाइन क्लास के दौरान ही बच्चे अपना होमवर्क कर रहे होते हैं, जो पिछली क्लास में मिला होता है कि हम तो ये वीडियो सुन रहे हैं और हमें साथ साथ करते जा रहे हैं, हम कर लेंगे, हम ये कर पा रहे हैं। आपको उस समय लग रहा है आप कर पा रहे हैं, पर क्या आपने इसे चेक किया कि आप इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या इसके चक्कर में दोनों चीज़ें नहीं हो पाई। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू evaluate yourself, and out of this evaluation, if things are fine, it's okay, otherwise make some corrections in the plan. हो सकता है आपको कुछ और तरीके से काम करने की ज़रूरत पड़े कि इतने इस स्लॉट में हम कोई और सब्जेक्ट करते हैं, ये वाले मॉर्निंग आवर्स में अगर हम बजाय फिज़िक्स के जो अगर हम अपना मैथ्स कर लेते हैं तो शायद हमें ज़्यादा आसानी हो। तो आपने जो प्लान बनाया है उसको बीच बीच में चेक करते चलें कि वो सही है कि नहीं। गोल्स बनाए आपने, अपना एक बड़ा गोल बनाया, उसके लिए उसको अचीव करने के लिए छोटे गोल बनाए, बट वो छोटे गोल मेजरेबल है कि नहीं है, उसे क्वांटिफाई कीजिए कि जो हमने काम किया वो हमें कहीं तक ले जा रहा है कि नहीं। इसी बीच डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे। IPL शुरू हो गया है तो मैच हो रहे हैं, या अब जब मैच हो रहे हैं तो वो हमें देखने ही है, क्योंकि उसके बिना बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। तो ध्यान रखिए, हमने कहा था आप जो टाइम टेबल बनाएंगे उसमें सारी चीज़ों के लिए टाइम होगा, एक स्लॉट वो भी होगा कि आप इतने टाइम में आप ऐसा टाइम टेबल को आप यहाँ पे फिर करेक्शन आता है, थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि जब IPL चल रहा है तो हम थोड़ा सा चेंज कर लें, इस टाइम पर हम मैच देख लेंगे और अपनी पढ़ाई थोड़े अलग टाइम पे कर लेंगे। एक चीज़ बच्चों बिल्कुल नोट कर लीजिए कि अपने सबसे बड़े दुश्मन एनिमी हम खुद होते हैं। बार बार हम लोग इस चीज़ को सुनते हैं कि हमने ये डिसाइड किया था, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, या क्या होता है, चलिए झट से मोबाइल पे नोटिफिकेशन, एक कुछ बजा हम नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे एक बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ आ रही है हम उसको देख लेते हैं, या कुछ ब्रेक ले लेते, घर पे कोई आ गया उससे बातें कर लेते हैं। कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं। और आपको कौन रोकेगा? आप खुद रोकेंगे, कोई और नहीं। हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं, कोई भी और आपको नहीं रोक सकता है जब तक आप अपने को खुद नहीं रोकना चाहेंगे। हम बहुत तैयारी करते हैं, बच्चे ये पूछते हैं हमने बहुत तैयारी करी, बहुत सारे प्लान बनाए, लेकिन उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। किसने रोका है? आप खुद ही तो अपने को रोकते हैं। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप इसे कर पाएंगे? पूरा भरोसा है आपको, सिर्फ जो ये मन है आपसे तरह तरह की बातें करता रहता है। तो हमें खुद ही अपने मन को शांत करना होता है कि अभी हम एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने IPL का नाम लिया, ये जो 2020 फॉर्मेट के मैचेस हैं, आप जानते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो जो वहाँ पे परफॉर्मेंस प्लेयर्स की दिखती है उसके पीछे घंटों की मेहनत होती है। तो आप एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमने बहुत तैयारी करी, याद किया और कल जाके एग्ज़ाम दिया, ख़त्म, और उसे भूल गए। आप इतने साल जो आपने स्कूल में लगाए वो इसलिए नहीं किए थे कि एग्ज़ाम पास करनी थी। दैट नॉलेज आइडियली हैज़ टू स्टे विथ यू। If I ask you what you did in the last class, you will not be able to recall everything, because you did it with different kind of aim. You had to pass exam. And if we keep on accumulating knowledge, I told you in the beginning, you have decided that you have to be an engineer. तो आपने जितना भी अब तक उससे रिलेटेड पढ़ाई की है, या जो साइंस के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की है, उन चीज़ों को आप भुला नहीं सकते हैं, वो सारी काम आने वाली है। आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होंगे तो ये सारी पढ़ाई जो आप 11th 12th में कर रहे हैं ये दोहराई जाएगी। तो अगर आपने इसे यहाँ ठीक से नहीं किया है तो वहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा। और अगर हम जो इस समय कर रहे हैं उसको पूरे मन से करें, अच्छे से कर लें, तो आगे हमारे पास जो टाइम बचता है उसको हम किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ी और तैयारी कर सकते हैं। तो वापस चलें, हमने पहले तैयारी की, प्रिपरेशन, फिर उसका एग्जीक्यूशन किया,
फिर अपने को इवैल्यूएट किया कि हमने उसे सही तरह से किया कि नहीं किया। अगर उस इवैल्यूएशन में थोड़े करेक्शंस की ज़रूरत है इवैल्यूएशंस के बाद, तो हम वो करें अपने प्लान। लेकिन अपने प्लान को बिल्कुल इस तरह से रोज़ इस तरह से जिए जैसे कि अब बस कल ही हमारी परीक्षा, कोई भी अंतिम नहीं होती बच्चों। Like no exam is final, we always say, but every day is an exam. Some amount of pressure is very important, then only we are able to perform. So distractions will always be there. There will be some unforeseen things happening in your life, but you cannot avoid them. लेकिन उन सब के लिए हमें गैप बना के रखने पड़ते हैं। तो जो आपने अपना शेड्यूल प्लान किया है उस पर स्टिक करेंगे। और एक और बात यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे, चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आपने अपने लिए जो टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, प्लानिंग की है, उसको आप अच्छी तरह से निभाएं। पर जब आप ये नहीं करते हैं, then your parents enter. Then your parents tell you 100 times in a day that you are not studying, you are not doing things in the way they should be done, and then you feel bad. पर ये मौका किसने दिया? When you were given, you were supposed to take charge of your life. पर जब आप ये नहीं कर पाते हैं तब दूसरे आपकी लाइफ का चार्ज ले लेते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो समय रहते अगर हम अपनी चीज़ों को ठीक से कर लें, एक बहुत पुरानी कहावत है, A stitch in time saves 9। समय पर लगाया गया एक टाका 9 टाकों को बचाता है। तो अगर आज से ही हम ये तैयारी शुरू कर दें, अभी नहीं हो पाया है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने गोल को, एम, लक्ष्य जो भी आपसे नाम दें, उसे डिसाइड करें और रोज़ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ें। It's just like a staircase. Daily you take one step, even not even one step, inch by inch you reach closer to that. But do it. आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उससे आगे अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। 2-3 चीज़ें याद रखनी है जो आज हमने कही हैं। आपको अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, उसके लिए कई सारे शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं। फिर हमने आपको 4 स्टेप्स बताए, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन एंड करेक्शन। बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे पर उससे कौन लड़ेगा? हम खुद। इसको भी रिपीट करते हैं, सबसे बड़ा एनिमी हमारा कौन है? सबसे बड़ा शत्रु हमारा कौन है? हम खुद। एक और ट्रिक बताते हैं, आप जाके किसी भी टाइम शीशे को देख लिया कीजिए और याद कीजिए कि हमें अपने को बताना है कि हम सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं। So children, I hope you will not be delaying, you will not be procrastinating, and will do your work on time. God bless you.